Hello everyone, this is Rashmi. Welcome to my channel that is Rashmi at the rate JRF Guru. चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो में हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं सीजी सेट का सोल्यूशन आंसर की ऑफ द सीजी सेट। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया बट वहां पर कुछ वॉइस इशू है। ड्यू टू दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं जितने भी क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए उनके आंसर एक बार फिर से डिस्कस करने वाली हूँ without explanation. Answer definitely I am going to discuss. And now I am going to continue with some more questions. Due to the limited time, I am making these short video, but still you are giving the response. Thank you for that. And I hope it is going to help you to challenge your question in the examination as well. तो कंटिन्यू करने के पहले इट इज माय ब्रीफ प्रोफाइल दैट आई एम एडुकेटेड रश्मि एट द रेट JRF Guru, but before this I worked an academy for the 5 years for the faculty or educator of anti-UGC NET computer science category, and I also worked with the Edu Uncle as an content creator, and I worked with GGITS Jabalpur as an assistant professor. So this is my brief profile. Now those who are watching this video, do join the Telegram channel for the PDF updates and notification about the classes, free content. And it is at the rate just Rashmi Kyarepuru. You can also download my app to access the free mock test to access free content that is the computer science student only. And here is the schedule that we are following for the upcoming August examination. So before 18th of August, till 18th of August, we are going to cover all the units with mock test. So like you can see, tomorrow is again mock test on your unit number 3 and 4. Then we will start unit number 5 and 6. It is unit number 5 and 6. We have mock test on 20th of July. Then we will start with unit number 7 and 8. And the mock test will be on 4th of August. Then so on. Thus, we are going to cover all these units by 18th of August with all the mock tests. And I am also providing the solution for the June 2018 में जो पेपर हुआ था, that is 18 June 2024, sorry 24 जो पेपर हुआ था उसका solution भी हम discuss करेंगे. And yes, to join the live mock test, you have to just download the app. It will be live from 6 p.m. Now, yes, if you want to prepare for the December 2024, you can join my batch, that is great. Here you will get Sampoorn Taiyari for anti-UGC NET set and examination. So you will get batch recorded session, topic wise, year wise, and GATE PYQs practice. You will have rank booster mock test series, PDF material, one-to-one guidance, and more things will be there. So you can join, and for more detail, you can connect with me on this number. Correct? तो ये मेरे courses हैं and already एक recorded course है that you can refer if you want to do the study by your pace. like आप अपने स्पीड से चलना चाहते then you can go for this. Still I have provided the weekly schedule for it. यदि आप चाहें तो उसके according भी preparation कर सकते. So this is what some courses from my side that is running on my platform. This is the completely free playlist where you will get unit wise practice series from 2023 to 2018. Correct? तो ये आपको previous year question यहाँ भी मिल जाएंगे नेट के. So this is about the classes courses that I am running now. First let's discuss the question जो कल हमने discuss किए थे previous session में और आप उनके answer नहीं देख पाए हैं. So here is the first question and I am using the orange color now. See, I am using green color so that you can identify the answer. So for this question, the answer is A and D, that is polymorphism, presence in inheritance, and abstraction and encapsulation. Now we have arranged the following HTML text in the correct sequence. Start a web page. So it should be start with C, that is HTML, head, title, and body. So C, A, B, D is the answer, that is HTML, then head, then title, and then the body. Now we have next question है कि the process of transforming the 2D world coordinate object into the device, इसको हम बोलते हैं window to view transport, viewing transformation, and windows transforming. So yes, ABC is the answer, option C. ABC is the answer, option C. Again, Brassenham algorithm use होता है for the line drawing.
कोहेन सदरलैंड यूज होता है लाइन क्लिपिंग, ब्रेसनहम डिजायर यूज होता है फॉर द कर्व एंड you have Sutherland Hosman, it is a polygon clipping algorithm. Option B is matching with this. Option B is matching with this. Now we have aspect ratio. So aspect ratio basically it is the ratio of width and the height. Option 1 aspect ratio. Option 1 arrange the following steps involved in DDA generation algorithm. इसके लिए हमने जो सीक्वेंस आपको दिया था इट इज ऑप्शन, देखिए वी शुड स्टार्ट विद इट इज ऑप्शन बी, ठीक है आपका ऑप्शन बी है. वी शुड स्टार्ट फ्रॉम सी, इनपुट द टू एंड पॉइंट ऑफ द लाइन, देन कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ dx एंड dy, देन dx dy की हेल्प से आप स्लोप कैलकुलेट करोगे एंड आफ्टर दिस वी विल हैव सेट द इनिशियल पॉइंट x1 एंड y1. देन आप नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन करोगे विद ई, loop through the x coordinate, increment the value of x and then the y value we have to calculate. Finally हम पिक्सल को प्लॉट करेंगे एंड रिपीट होगी ये स्टेप ई एन एफ अंटिल वी विल रीच टू x2 एंड y2. तो जी शुड बी लास्ट. यहाँ आंसर आपका होगा ऑप्शन बी. इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी. नाउ द इसके लिए मैंने आपको बोला था आई विल टेल यू, अभी भी मैंने नहीं देखा, चलिए नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आई विल टेल यू. हियर द एंटिटीज हुज वैल्यू कैन बी चेंज इज कॉल्ड द वेरिएबल. ठीक है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं यदि वैल्यू चेंज हो रही है तो. द विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड स्पेसिफिक रूल्स एंड द टर्म्स एंड आर्टिकुलेट द लॉजिकल स्टेप्स, इट इज कॉल्ड द फ्लो चार्ट. ऑप्शन है आपका फ्लो चार्ट. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? फ्लो चार्ट. ओके, तो हियर इज द आंसर. हम ग्रीन कलर यूज कर रहे थे तो फ्लो चार्ट या लॉजिकल. If file is open function is called not able to open the file, it returns a null pointer. ये null pointer को return करता है. Now see which of the following statement in SQL query. तो option A SQL query can have having clause without by, correct है. And all the attribute must be present in the select clause, correct है. So A and C is the answer. A और C आपका आंसर होगा. Now, which of the following normal form contain the information about the single entity? Answer है 4NF. ठीक है, आंसर 4NF. ऑप्शन डी. Now we have next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? डायरेक्टली इस अभी जो फर्स्ट अप टू 50 है यहाँ तक मैं आपके आंसर ही डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज प्रीवियस सेशन में मैंने इनका डिस्कशन किया है. देखिए, let Vyapam having the V1, V2, V3, MHRD have MN, M2 and M3 be the two relation, then V1 is the foreign key and Vyapam refer to the primary key of MHRD. So insertion into foreign key and deletion from the primary key will cause the violation. So answer option D. Option A and D will cause the violation. Insert into primary key and deletion. Sorry, insertion into foreign key and deletion from the primary key. Which of the following platform does the Hadoop run? Is cross platform. Option है C. Now the logical data independence provide the following changes. Yes, we can change the न्यू एंटिटी ऐड कर सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द रिकॉर्ड कर सकते हैं बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट फिजिकल. चेंजेस इन स्टोरेज एक फिजिकल इंडिपेंडेंस होगा, है ना. यहाँ बी और सी इज द आंसर. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी, बी एंड सी इज द आंसर. नाउ यहाँ आपसे पूछा गया बिग डेटा से क्वेश्चन कि भाई रिकॉर्डिंग वीडियो होगा अनस्ट्रक्चर्ड, मेकिंग अटेंडेंस ये होगा स्ट्रक्चर्ड एंड HTML इज सेमी स्ट्रक्चर्ड. तो रिकॉर्डिंग वीडियो इज 3, A is 3, then making attendance it is semi structured, it is structured. Option 1 and HTML code is semi structured. 3 2 3 1 2 option C is the answer. 3 1 2 option C आपका आंसर है. इस क्वेश्चन को हमने कंसीडर नहीं किया है फॉर द डिस्कशन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस. इसको आप क्या बोलते हैं? इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस. ऑप्शन बी. नाउ वी हैव अगेन द प्राइमरी की फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो प्राइमरी की के लिए हमारा जो आंसर आ रहा है इट इज 1 2 3
1 to 4 because it 1 to 4 are the mandatory element. जब closer calculate we are getting all the element, आंसर होगा 1 to 4. एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है. नाउ वी हैव मैच द टेबल फॉर दिस ट्रांजेक्शन. जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट तो नहीं है. ट्रांजेक्शन फॉलो करता है एसेट प्रॉपर्टी. नाउ नेचुरल ज्वाइन रिलेशनल अलजेब्रा है. A4 B4 A4 B4 A4 इसको और ये दो ऑप्शन एलिमिनेट. नाउ C3 और C1. तो B3 इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है. ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एंड डी कॉन्करेंसी कंट्रोल. इट इज अ टू फेज लॉकिंग, एक टेक्निक होती है जो कॉन्करेंसी कंट्रोल पर बेस्ड है. बी इज द आंसर. नाउ सी यहाँ पर आपके यूनिट 5 है, दैट इज create process. It is equivalent to fork command. Create file, it is equivalent to open. Get current process id, it is equal to get pid. Okay, and set file security change mode. change mode. तो यहाँ आंसर आपका है create process. A is to option C. A is to option C. दिस न्यूमेरिकल, यहाँ पर जो आंसर होगा इट विल बी 1 and 60, sorry 10 and 60. Minimum possible value is 10 and maximum possible value is 60 here, so it will be 10 and 60. Now what is the example of user interface? I told you कि मुझे इन सभी में confusion है, but we can eliminate command line interface because हम जब difference पढ़ते हैं तो user ग्राफिकल इंटरफेस और कमांड लाइन को हम डिफरेंशिएट करते हैं. तो दैट्स व्हाई बैच इंटरफेस, ग्राफिकल इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस. बीसीडी कहाँ दिया है? ऑप्शन सी कैन बी द आंसर. हम आंसर की में भी चेक कर लेंगे. हियर द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विच इट विल बी 2. ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विच जब हमने कल कैलकुलेट किया था आंसर था 2. Then we have people suffer from baladies. Yes, page fault. जब page is not in memory, it is also correct. But thrashing is not correct. Thrashing means the process is spending time in paging instead of execution. So that is what called thrashing. ये thrashing की गलत definition है. So option A, that is A and B is the correct answer. ठीक है. Now see यहाँ पर अब आपसे बोला गया correct sequence बताइए. करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, यहाँ पर था ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. पोसिक्स फुल फॉर्म, इसको आप चैलेंज डेफिनेटली कर सकते हैं बिकॉज इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल ऑपरेशन सिस्टम इंटरफेस. तो इसको कैंसिल करिए और इसको आप चैलेंज करिएगा. नाउ वी हैव, जब हमने सॉल्व किया डिस्क स्टोरेज वाला क्वेश्चन, तो लास्ट नोट क्या है? 25 से आपको कहाँ जाना है? शॉर्टेस्ट सीक टाइम यूज करना. तो 25 17 10 एंड सो ऑन. तो 25 माइनस डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा 22. मल्टीप्लाई 1 करिए तो आपको मिल जाएगा 22 सेकेंड्स, 22 मिली सेकेंड. द जॉब पूल रिसाइड इन सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन 1 होगा. ठीक है, जॉब पूल कहाँ रिसाइड होता है? जॉब रिसाइड इन द secondary memory. Second, job pool is reside in एक मिनट, एक मैसेज है, then we will continue. हाँ, तो जॉब पूल में आपका क्या है? इट विल बी इन सेकेंडरी मेमोरी बिकॉज जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है इट टेक द प्रोसेस फ्रॉम द जॉब पूल एंड असाइन करता है टू द रेडी क्यू. जॉब पूल कहाँ प्रेजेंट है? सेकेंडरी मेमोरी, है ना. एंड सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को लोड कर दिया जाए. लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था इट वाज कंफ्यूज. So yes, in some like loader takes the input from the linker and compiler. So I would like to go compiler because object code को ही बाद में execute किया जाता है, load किया जाता है compiler से. ठीक है. And in the system modeling, which of type of model represent the static system is called the structural model, option B.
तो दिस इज द लास्ट पेपर जो हमने सॉल्व किया। आज हम कंटिन्यू करते हैं विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्वेश्चन नंबर 51 से, ठीक है। ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम तक हमने सॉल्व कर लिया था। नाउ वी हैव द क्वेश्चन 51 is here. You can see the Mackels has proposed. Mackels has proposed the quality. Mackels has proposed ऑप्शन सी द क्वालिटी मॉडल। प्रोसेस मॉडल नहीं है, रेड मॉडल नहीं है, स्पाइरल। स्पाइरल दिया था बैरी बोहेम ने, ठीक है। तो मैकल्स हैज प्रपोज्ड द क्वालिटी मॉडल विच मैच द फॉलोइंग a good quality, correctness, predictable and reliable। इसको हम अपोजिट करेंगे। Program does not fail for the specified time of given environment is called the reliability। Meet the functional requirement, it is called the quality। Meet both the function and functional requirement, it is correctness। And a process under statistical control is predictable। So like you can see यहाँ जो ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन ए, good quality is meet the functional and non-functional requirement, correctness is meet the functional requirement, and predictable means a process under statistical code, and then reliable means option 1, option 1। so the answer a, the answer a होगा। The worst case of module cohesion is called the coincidental cohesion। worst case of module क्या है आपका है। नाउ सी इन्होंने एक न्यूमेरिकल भी दिया है। Consider the software program that is artificially seeded with the 100 faults। टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट जो सीड किए गए वो कितने हैं आपके 100 फॉल्ट्स हैं। एंड वाइल टेस्टिंग द प्रोग्राम 159 टोटल फॉल्ट जो मिल रहे हैं वो 159 आउट ऑफ 75 फॉल्ट्स फ्रॉम दोज आर्टिफिशियल। तो 100 में से 75 फॉल्ट्स यहाँ हमको डिटेक्ट हुए। अज्यूमिंग दैट बोथ द रियल एंड सीडेड फॉल्ट्स आर सेम इन नेचर एंड हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ अनडिटेक्टेड रियल फॉल्ट्स कितना होगा। आपको यहाँ फाइंड आउट अनडिटेक्टेड रियल फॉल्ट। तो देखिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आर्टिफिशियल फॉल्ट कितने थे, आर्टिफिशियल फॉल्ट थे 100। फिर रियल फॉल्ट वी हैव टू फाइंड आउट, एंड देन फ्रैक्शन यदि हम देखें कि आउट ऑफ 100 हाउ मेनी डिटेक्टेड 75, it is 3/4, 3/4। now we know that detected fault कितना है 3/4। 3/4 इसके इक्विवेलेंट है, it is equivalent to total 159 fault डिटेक्ट हुए, जिसमें से 75 क्या है, 75 are the seeded fault। तो 3/4 ऑफ x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4 ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ रियल फॉल्ट। टोटल नंबर ऑफ रियल फॉल्ट will be 84। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 112। तो टोटल फॉल्ट जो रियल फॉल्ट है वो 112 है, माइनस 84 कर दीजिए, दैट इज योर इट इज इक्विवेलेंट टू 84 द डिफरेंस, है ना। सो x इज 112, पुट दिस वैल्यू, तो आपको क्या मिल जाएगा 112 आर द टोटल रियल फॉल्ट माइनस 84 आप करेंगे विल गेट द नंबर ऑफ। इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्होंने क्या बोला कि यस टोटल फॉल्ट्स हैं आपके जो आर्टिफिशियल फॉल्ट है इस 100, टोटल जो हमको डिटेक्ट हुए हैं वो 159 फॉल्ट्स हैं। तो अब आपका जो फ्रैक्शन ऑफ फॉल्ट डिटेक्ट हुआ फ्रॉम द 100, ठीक है, क्योंकि भाई ये बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल फॉल्ट 100 थे और उसमें से जो डिटेक्ट हो रहे हैं आर्टिफिशियल 75। तो यदि हम इनका फ्रैक्शन निकालें आउट ऑफ 100 कितने फॉल्ट डिटेक्ट हुए, सो इट विल बिकम 3/4, ठीक है। अब 3/4 फ्रैक्शन फॉल्ट्स आर डिटेक्ट। नाउ वी नो दैट कि 3/4 ये फ्रैक्शन ऑफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ आर्टिफिशियल फॉल्ट। तो टोटल फॉल्ट्स में यदि हम आर्टिफिशियल फॉल्ट देखना चाहें तो 159 माइनस कितना हो जाएगा, इट विल बी 150 माइनस 75। So 3/4 into x will give you 84, or when you will solve
x का वैल्यू मिलेगा 112। तो ये जो डिटेक्टेड फॉल्ट है इसमें से 112 आपके फॉल्ट डिटेक्ट हो रहे हैं। एंड फॉल्ट डिटेक्ट में से यदि मैं आर्टिफिशियल फॉल्ट माइनस कर दूं, आर्टिफिशियल फॉल्ट को यदि मैं माइनस कर दूं टोटल, देन आई विल गेट द आई विल गेट द रियल फॉल्ट। तो 84 को जब आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 28। आंसर यहाँ का 28। तो हमने सबसे पहले डिटेक्टेड रियल फॉल्ट्स निकाले हैं। रियल फॉल्ट के लिए हमने 3/4 इज द फ्रैक्शन ऑफ artificial fault of x, it will be equal to 84, the real fault। actual value of x आपको मिल रही है 112। 112 minus 84 will give you the undetected detected है undetected real fault, so it will become 112 is undetected of the faults and minus 84 the detected fault, so undetected fault will become only 28। तो आंसर है इसका 28। arrange the following development types cycle phase in the correct sequence: testing, maintenance, requirement। we should start with the requirement gathering। requirement के बाद आपका आ जाएगा testing, नहीं it will be design। after testing go for design, then testing and maintenance, it will be CDAB। आंसर होगा ऑप्शन बी CDAB। Finally, assertion. In the waterfall model software development, each phase must completed before the next। Correct है। Reason क्या है? The waterfall model follow the sequential approach with the output of one phase serve as the input। Yes, ना इस तरीके से लिखते हो ना आप C, that is communication, planning, modeling। तो एक phase का output दूसरे में input बनता है। Both are correct statement and explanation is also correct। The system modeling, which type of model represent the static aspect? Structural model static aspect को represent करते हैं। Now this is the PYQ of GATE। ये previous year है, GATE हमारे PDF में भी आपने कई बार देखा होगा। इसका आंसर है waterfall model inflexible partitioning होती है। Evolutionary model में requirement specification can be developed incrementally। B is 1, ठीक है। A is 4, बी क्या हो जाएगा? स्पेसिफिकेशन कैन बी डेवलप्ड इंक्रीमेंट। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, एलिमिनेट कर दीजिएगा। नाउ वी हैव कंपोनेंट बेस्ड, ये हो जाएंगे आपका रिक्वायरमेंट कॉम्प्रोमाइज आर इनएविटेबल। एंड देन स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल मॉडल क्या है? इट इज रिलेटेड टू द रिस्क। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब भी स्पाइरल मॉडल का नाम आता है ये रिस्क से एसोसिएटेड है। Now, which of these does not affect the different type of software as a whole? Flexibility, heterogeneity मतलब variety की बात होती है। Business and social changes, it will affect the software। Security will affect the software, but flexibility does not have more effect। We should go with the flexibility। द कपलिंग बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगेन ये आपका गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हमारे पीवाईक्यू सेशन में इंक्लूडेड है। तो इट इज ऑप्शन ई, दैट इज डेटा कपलिंग, टैम कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, कॉमन कपलिंग एंड कंटेन कपलिंग। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर होगा। नाउ वी हैव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टिंग एल्गोरिथम, फॉलोइंग sorting algorithm are comparison based। तो are comparison based, कौन से यहाँ पर comparison based हैं? ठीक है, comparison based आपका है merge sort and quick sort। comparison based आपका है merge sort and quick sort। counting and radius sort are not the comparison। merge and quick sort option A, okay? merge and quick sort। now which of the following statement about ABL is true? स्टेटमेंट ए, ABL ट्री या सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होते हैं। यस, ट्रू है। द हाइट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट नोड एटमोस्ट 1, -1, 0 और +1 हो सकती है। करेक्ट। नाउ ABL ट्री गारंटी द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ log n, ये भी करेक्ट है।
ABL tree has more space. No, red black tree are the more space efficient because red black tree में जो space complexity वो order of 1 होता है and it is more efficient. So ABC option B is the option B आपका आंसर होगा. Which sorting algorithm has worst case time complexity and log n? देखिए एंड फॉर एक्सटर्नल शॉर्टिंग के लिए हमारे पास मर्ज शॉर्ट है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होती है. क्विक शॉर्ट की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है. सिमिलर फॉर इंसर्शन एंड बबल. तो भाई हमारा आंसर, और याद रखिए इंसर्शन बबल आर नॉट यूज फॉर द एक्सटर्नल शॉर्टिंग. आंसर है ऑप्शन ए. Which of the following is not a property of heap? तो heap complete binary tree है. It do not follow the BST property. We can have min heap, we can have max heap, and parent key will be smaller or larger depends on the min heap or the max heap. आंसर यहाँ आपका है ऑप्शन बी. बाइनरी सर्च ट्री not the property of binary heap. Arrange the step involved in building max heap from unsorted array in correct order. तो देखिए यहाँ आंसर स्टेप स्टार्ट होगा. स्वैप द रूट एलिमेंट विद द लास्ट एलिमेंट ऑफ द, जो भी रूट एलिमेंट है लास्ट एलिमेंट ऑफ स्वैपिंग करना है. उसके बाद फाइंड द पेरेंट ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ अरे एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट नोड हिपिफाई ऑपरेशन होगा एंड स्टेप ए एंड बी रिपीट होगा. तो इट इज ऑप्शन सी बी ए डी. ना इट विल बी सी बी ए डी. Now finally, which of the following data structure is used for disjoint set? Union find disjoint set data structure. Yes, इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है और हम पढ़ते भी हैं. Now we have which of the following is NPC? Traveling salesman is NPC. Traveling salesman problem आपका है NPC problem. Okay, traveling NPC problem है. यहाँ आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. ये मैंने दिया हुआ है नोट्स में, इसलिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं. द डिस्कास्टास की स्टेप्स क्या होगी? तो इनिशियलाइज द डिस्टेंस ऑफ, लाइक हम इस तरीके आप बनाते हैं ना, तो ए से यदि आपको फाइंड करना है तो डिस्टेंस 0 बाकी इंफिनिटी सेट कर दो. यस. उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं डायरेक्टली कनेक्ट नोड का एंड शॉर्टर पाथ को फाइंड आउट करते हैं, सपोज बी 2. फिर एग्जिट वर्टेक्स विद द मिनिमम डिस्टेंस को हम परमानेंट मार्क कर देते हैं एंड देन रिपीट करते हैं. तो आंसर है ए बी सी डी, दैट इज ऑप्शन ए बी सी डी आंसर. उन्होंने न्यूमेरिकल किया, इजी सॉल्व कर लिया होगा. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम आर यूज्ड इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग? डायनेमिक बेलमैन फोर्ड है, लॉयड वॉर्शल है, डिस्कास्टास नहीं है. नैपसेक प्रॉब्लम, यदि यहाँ 0-1 नैपसेक होता तो और भी एक्यूरेट आंसर बनता. तो नैपसेक प्रॉब्लम दो टाइप से होती है. इट इज 0-1 नैपसेक प्रॉब्लम जिसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करते हैं एंड अनदर नैपसेक प्रॉब्लम, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं विद ग्रीडी मेथड. तो 0-1 नैपसेक यदि यहाँ होता तो और भी एक्यूरेट था, बट यू कैन गो विद दिस नैपसेक प्रॉब्लम का. इट इज कॉल्ड पार्शियल नैपसेक. नैपसेक प्रॉब्लम वी हैव फर्स्ट इज फ्रैक्शनल नैपसेक. फ्रैक्शनल नैपसेक हम सॉल्व करते हैं. यस, यहाँ पर थोड़ा आंसर कंफ्यूजिंग है, बट स्टिल यू विल गो विद ऑप्शन बी. ठीक है, ऑप्शन बी आप जा सकते हो. नाउ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस नैपसेक प्रॉब्लम रिकर्सिव विद मेमोराइजेशन. तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन एंड आई विल ट्राई टू एंड दिस पेपर इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. सेशन को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आई विल बाइंड अप दिस, क्योंकि अब सिर्फ आपके 3 यूनिट रह गए हैं और इजीली सॉल्वेबल यूनिट है. तो डेफिनेटली इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट दिस वन. थैंक यू एवरीवन. सेशन को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड अपना फीडबैक भी दें. थैंक यू.